हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, दैट इज अ सब पार्ट इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एंड एनालाइज करने वाले हैं एंड मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से एरियाज हैं कंज्यूमर बिहेवियर में, which is by far the most important area when it comes to the net examination. यहां पर द वेटेज इज वेरी हाई। ओके, ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफी सारे एरियाज हैं जहां पर कंज्यूमर बिहेवियर which stretches from budget line to elasticity to demand to substitution income effect to reveal preference to intertemporal choice to choice under uncertainty, ये सब कुछ इनकैप्सुलेट हो रहा है कंज्यूमर बिहेवियर में। ओके, तो काफी क्वेश्चंस आते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से एरियाज आर इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से एरियाज है कंज्यूमर बिहेवियर में जो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड कौन से वो थ्योरीज है, कौन से वो एरियाज हैं जो आपको डेफिनेटली मिस आउट नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का सबसे पहला एरिया है टॉकिंग अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। यहां पर हम लोग प्रेफरेंस के अजम्पशंस के बारे में बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए। सो assumptions of ordinal analysis of preferences, what is the meaning of completeness, what is the meaning of transitivity। completeness का मतलब है कि any two bundles can be compared by the utility function। transitivity का मतलब है if A is preferred over B, B is preferred over C, then A will be preferred over C। non satiation का मतलब है कि always I will be able to find out a bundle which will be preferred over the previous bundle if I increase the amount that I consume for one of the goods। and the consumer rank bundles based on preferences without quantifying utility। okay, budget set को भी जानना जरूरी है। how does a budget line look, budget line का slope क्या है। budget line का slope is minus px by py। what happens if px increases the slope becomes steeper, and if px remains the same and only py increases, then what happens, then it becomes flatter, so on and so forth। ठीक है, सो ऑर्डिनल एनालिसिस एंड बजट सेट के एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस अपीयर करते हैं इन द नेट एग्जामिनेशन। सो ये अक्टूबर 22 नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग assumptions of ordinal utility analysis। डायरेक्ट क्वेश्चन है। consumers are consistent in their preferences, yes they are consistent। आज जो उसको पसंद है कल भी वो उसको पसंद होगा। consumers can measure the total utility received by, they cannot measure the total utility received। okay, ये नहीं है। consumers preferences follow transitivity, yes in the ordinal utility analysis it is। consumers are non-satiated with respect to goods that they confront, yes। so A correct है, C correct है, D correct है। तो A C D will be your answer in this case। so answer होगा ये ऑप्शन B। ओके, आंसर होगा ये ऑप्शन बी। बजट लाइन का एक क्वेश्चन, सपोज गुड वन इज टेकन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, गुड टू ऑन द वर्टिकल एक्सिस। सो कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है, x1 यहां पर है, x2 यहां पर है। ओके, then what happens to the budget line if the price of good one doubles and the price of good two triples। so अगर price of good one and good two supposing same था, 5 था, गुड वन का प्राइस इज डबलिंग 10 हो गया, गुड टू का प्राइस इज ट्रिपलिंग 15 हो गया। तो अर्लियर px by py या p1 by p2 in this case, the slope of the budget line absolute value was 1। now the slope of the budget line absolute value is 2 by 3। so अगर पहला slope was this, now the slope will be
this. Basically, it is फ्लैटर होगा, राइट? पहला स्लोप एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, दूसरा स्लोप एब्सोल्यूट वैल्यू 2/3 है. बजट लाइन विल बिकम फ्लैटर. बेसिक बजट लाइन का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट द बजट लाइन विल ऑलवेज बी क्लोज्ड, कॉन्वेक्स एंड बाउंडेड. इसका ये मतलब है दैट इफ आई ड्रॉ बजट लाइन, ड्रॉइंग इट फ्री हैंड, अगर मैं बजट लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं इन दी x1 x2 स्पेस, all these bundles below the budget line is called the budget set. Okay, all of these bundles are affordable basically. Okay, so the affordability set, also called the budget set, the affordability set is closed. Closed का मतलब है कि एक maximum होगा, एक minimum होगा, highest and lowest. Bounded का भी वही मतलब है कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक है, एक हाईएस्ट अचीवेबल एरिया है यहाँ पे, हाईएस्ट अचीवेबल एरिया यहाँ पे, हाईएस्ट अचीवेबल एरिया इन द मिडल ऑन द बजट लाइन, and lowest achievable is basically the origin 0 0. I don't consume anything of both the goods. And convex का मतलब है taking a linear combination of any two goods. So this linear combination, any two bundles if I take, any bundle on this straight line will also be a part of the bundle. That is convexity. Okay, so the budget set will always be closed, bounded and convex. ये तीन चीज आपको याद रखना है. They ask you direct questions on this also. Okay, so ये दोनों हो गए. बजट सेट का भी क्वेश्चन हमने देख लिया. बजट लाइन का क्वेश्चन था इनफैक्ट, वो भी हमने देख लिया. अब एक नेक्स्ट एरिया के बारे में बात करते हैं, वो है कंज्यूमर सरप्लस. अब कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कंज्यूमर सरप्लस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द विलिंगनेस टू पे ऑफ द कंज्यूमर एंड द अमाउंट दैट द कंज्यूमर इज एक्चुअली पेइंग. तो ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी. तो दिस is called the producer surplus, called PS, and let's use a different color. This is called the consumer surplus. Okay, this is basically the difference between ये maximum price है, ये equilibrium price है, ये equilibrium quantity है. Okay, so basically this triangle will be consumer surplus and this below triangle will be the producer surplus. Okay, ठीक है. ये अगर आपको पता है, ये will make it easier for you to solve all the consumer surplus problems. Consumer surplus is the difference between potential and actual price, and that's actually true. And तो ये तो पहला वाला तो ट्रू है ही. There exists an inverse relationship between price and consumer surplus, वो भी सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि as my price is going up, मेरा ये consumer surplus का area is going down. Okay, so higher the actual price, lower will be the consumer surplus. So exists an inverse relationship between price and consumer surplus, and ये है, that's exactly why consumer surplus is basically the difference between potential and actual price. Okay, so assertion and reasoning and R is the correct explanation of A. Okay, both are true. तो ये ऐसा है, that means there exists an inverse relationship. Explanation. ठीक है, तो ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस. अब नेक्स्ट जो एरिया है वो है इलास्टिसिटी. अब इलास्टिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कंज्यूमर की, काफी सारे क्वेश्चंस, जहां पर आपको इलास्टिसिटी एज अ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी
ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, इनकम इलास्टिसिटी क्या है. ओके, दैट्स बेसिकली ये इसमें हो गया डी क्यू डी पी इंटू पी बाय क्यू. क्रॉस हो गया डी एक्स डी पी वाई इंटू पी वाई बाय एक्स. ओके, इनकम हो गया डी एक्स डी एम इंटू एम बाय एक्स. ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व बिकम्स इंपॉर्टेंट टू नो. अगर लीनियर डिमांड कर्व है मतलब कि स्ट्रेट लाइन है, प्राइस इलास्टिसिटी इज बेसिकली लोअर डिवाइडेड बाय अपर. बेसिकली इलास्टिसिटी इज माइनस, अगर ये पॉइंट है से ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है एल, तो माइनस ए एल बाय ए बी इज व्हाट इज माय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर ये पॉइंट है से एक्स, तो माइनस एक्स एल बाय बी एक्स. तो जितना नीचे मैं चला जा रहा हूं डिमांड कर्व में, उतना कम मेरा इलास्टिसिटी होता जाता है. जितना अप मैं जा रहा हूं ऑन द डिमांड कर्व, द हायर इज माय इलास्टिसिटी. So the lower I go on the linear demand curve, the lower is my elasticity. So minus lower section divided by upper section, ये हो जाता है. Okay, cross price elasticity is basically अगर price of the other good is changing, how will my first good change? So x में क्या change होगा अगर y is changing? तो अगर dx dpx, सॉरी dx dpy पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि प्राइस ऑफ y इंक्रीज हो रहा है तो x का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है. प्राइस ऑफ y इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस दैट y इज बिकमिंग द मोर एक्सपेंसिव गुड. एंड इन दैट केस इफ आई बाय मोर ऑफ x, मतलब कि मैं y का कंजम्पशन को x से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. सो व्हेनेवर आई हैव dx dpy पॉजिटिव, dx dpy positive, that is the case of a substitute, and dx dpy negative, that is the case of a complement. तो जब भी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट गुड है. राइट, dx dpy into py by x is what is my cross price elasticity. इनकम इलास्टिसिटी में भी इजी है. इनकम इलास्टिसिटी में एक तो लग्जरी गुड्स है वेयर द इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 एंड नेसेसिटीज के लिए लेस देन 1, which is but obvious because if my income is increasing, my consumption of salt or the number of chapatis that I eat, that is not increasing by the increase in my income. Okay, and my luxurious good ka elasticity will always be greater than 1 because I will buy more of the luxury good when I earn more money. यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी बीइंग नेगेटिव और पॉजिटिव. अगर इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव हो जाता है, दैट काइंड ऑफ अ गुड इज कॉल्ड एन इंफीरियर गुड. एंड अगर वो पॉजिटिव है, उसका मतलब है कि वो नॉर्मल गुड है. तो एन इंफीरियर गुड इज अ गुड जहां पर इफ माई इनकम इज इंक्रीजिंग एंड माई कंजम्पशन इज फॉलिंग, ऐसे भी गुड्स होते हैं. इनकम इंक्रीज हो रहा है एंड यू आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम दैट गुड नाउ, यू विल कंज्यूम समथिंग एल्स नाउ. क्योंकि आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है, द डिमांड फॉर से 1,000 रुपीज का फोन आप पहले खरीदते थे, अब आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है, यू विल नॉट कंज्यूम दैट, यू विल नाउ बाय अ स्मार्टफोन. तो देयर विल बी अ फ्यू गुड्स जहां पर योर कंजम्पशन विल गो डाउन as your income is increasing. Okay, those are called inferior goods, and a subsection of inferior good is also giffen good. हम लोग giffen good के बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ इलास्टिसिटी के प्रॉब्लम्स देखेंगे. तो दिसंबर 2011 का ये क्वेश्चन है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 फॉर अ डिमांड कर्व. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा डिमांड फंक्शन. ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब है समथिंग लाइक दिस, व्हिच मींस प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट. मतलब कि द रेवेन्यू और द एक्सपेंडिचर दैट आई एम डूइंग ऑन अ पर्टिकुलर गुड, दैट इज कांस्टेंट. दैट मींस price elasticity of demand is equal to 1 for that particular good.
तो आंसर यहां पर सी है. सो डिफरेंट इलास्टिसिटी में डिफरेंट नेचर होता है डिमांड कर्व का, वो जानना आपको जरूरी है. एंड दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. ओके, अब इसके अलावा काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कम विल बी मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग बहुत अच्छा लगता है यूजीसी नेट को. मैच द फॉलोइंग में इनकम इलास्टिसिटी एक्सीड्स यूनिटी, कौन सा केस है? लग्जरी गुड का केस है. पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट गुड का केस है. डाउनवर्ड स्लोपिंग प्राइस कंजम्पशन कर्व इलास्टिक डिमांड का केस है. इलास्टिक होगा ना डिमांड, क्योंकि अगर नेगेटिव है प्राइस कंजम्पशन कर्व, दैट मींस दैट मेरा एक्सपेंडिचर ऑन वाई इज गोइंग डाउन. एक्स का प्राइस इज फॉलिंग, expenditure on y is falling, expenditure on x is increasing. So expenditure on x increasing with a fall in price of x basically means that my x consumption is increasing by more than proportion such that my x into px is rising, right? तो ये इलास्टिक डिमांड का केस है. नेगेटिव इनकम इफेक्ट विल लीड टू इंफीरियर गुड. तो यहां पर A4, B1, C3 एंड D2 है आंसर. यहां पर आंसर इज डी. तो आंसर इज डी. अब एक्सपेंडिचर फंक्शन, यस, दैट्स अगेन अ कॉन्सेप्ट दैट इज इंपॉर्टेंट. एक्सपेंडिचर फंक्शन, एक्सपेंडिचर फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 इन प्राइसेस. एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है कि प्राइस ऑफ द फर्स्ट गुड मल्टीप्लाइड बाय द डिमांड. This is a function of P1, P2 and utility plus P2, X2, P1, P2 and the utility. ठीक है? This is called the expenditure function. It's homogeneous of degree 1 in prices. लैम्डा से अगर मैं इंक्रीज करूं तो एक्सपेंडिचर भी लैम्डा से इंक्रीज होता है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन यूटिलिटी, यूटिलिटी हैज टू इंक्रीज, तो X1 भी इंक्रीज होगा, यूटिलिटी इंक्रीज होगा, X1 will increase as a result of the utility, X2 will increase as a result of the utility, so increasing in utility. It's concave in prices, so it will look like a concave function and it's continuous in price and utility. So these are a few properties of the expenditure function. इसके ऊपर questions आते हैं. कैसे questions आते हैं? Properties of expenditure function. Direct questions भी आते हैं. This is one of the direct questions that you have. Homogeneous of degree 1, strictly increasing in utility, concave in price, continuous in P and U. A, B, C, D सब correct है, E correct नहीं है. Concave है, convex नहीं है in prices. Okay, June 2023 इतना latest question है on expenditure function. अब डिमांड एनालिसिस के बारे में अगर मैं बात करूं, डिमांड एरिया में यहां पर सबसे पहले स्लट्सकी इक्वेशन under demand analysis you should know. It decomposes the price effect into the substitution and the income effect. Absolutely basics, jahan par if the price of any good decreases, it has two effects. One is that obviously because of the decrease in the price of good, real income is increasing, and because of the decrease in the price of good, I will substitute my consumption for the good that is cheaper. So ये दो effects को बहुत ही beautifully स्लट्सकी अपने इक्वेशन में कैप्चर करते हैं, जहां पर I can take a look at the substitution effect as only because of the substitution क्या इफेक्ट हो रहा है on the consumption, and if my income is increasing उससे क्या इफेक्ट हो रहा है. ये दोनों इफेक्ट को कैप्चर करके इसको बोलते हैं प्राइस इफेक्ट. ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट अंडर डिमांड इज एंगल कर्व. एंगल कर्व में आपको ये देखना है इन दी एक्स एंड इनकम स्पेस कैसा कर्व बनता है. ओके, अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि एज माय एक्स इज इंक्रीजिंग, माय मनी इनकम इज इंक्रीजिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि एक्स एंड मनी इनकम हैव इनवर्स रिलेशन. बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब है ये कि
पहले तो नॉर्मल था गुड, फिर इंफीरियर बन गया गुड. ओके. Giffen good are those goods where price of X is increasing, X consumption is also increasing, both going into the same direction. That means that the law of demand is not holding. और ये वाले सिचुएशन में सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव. दैट इज माय प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, एक्स विल इंक्रीज, and because my real income is increasing and my x is decreasing, right, मेरा income effect overpowers the substitution effect. Income effect इतना ज्यादा overpower कर रहा है to the substitution effect that overall x is decreasing. So price of x falls, x is increasing by the substitution effect always. Money income, because the real income is higher, money income increasing, x falling, income effect is negative. Okay, negative effect on x, here positive effect on x. Overall, if x has to fall, it means that the income effect is overpowering the substitution effect. So Giffen good में ये होता है, income effect outweighs the substitution effect, leading to an upward sloping demand curve. Okay. अब इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट के बाद में कुछ इफेक्ट्स या कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, लाइक द वेबलेन इफेक्ट. वेबलेन इफेक्ट इज एन इफेक्ट वेयर कीमती चीजों का प्राइस इतना ज्यादा हाई क्यों है. कोई रेयर पेंटिंग है, कोई कलेक्टेबल पीस है, देयर वैल्यू इज वेरी हाई. दैट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द वेबलेन इफेक्ट. ऐसे टाइप के गुड्स को वेबलेन इफेक्ट बोलते हैं बिकॉज ऑफ द परसीव्ड स्टेटस. लग्जरी कार्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, दैट्स अ वेबलेन इफेक्ट गुड. स्नॉब इफेक्ट इज बेसिकली owning again something that is extremely rare. इसीलिए what I wear is a limited edition. Okay, that is a snob effect. ये दोनों बहुत ही closely है related but different है. Please understand the difference. Okay, तो अब ये डिमांड एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे. Slutsky equation deals with decomposition of price effect into the substitution and income effects. Answer A है. June, November 2017, good is called a Giffen good when income effect is overpowering the substitution effect. Negative है and greater than the substitution effect. ठीक है, इनकम इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होगा इन अ गिफन गुड क्योंकि गिफन इज एन इंफीरियर गुड. The demand for rare paintings and rare stamps is explained by the Veblen effect. Veblen effect है demand for rare paintings. Okay. चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हो गए डिमांड एनालिसिस में जहां से क्वेश्चंस आते हैं. अब आते हैं इन नोइंग इंपॉर्टेंट थियोरीज बाय इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट एंड कब उन्होंने ये थ्योरी को अपने बुक में आइडेंटिफाई किया. ओके, तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल इन द लेट 19th सेंचुरी. 1800s के एंड में कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी आया into the field of economics. Ordinal utility was taken out by Hicks and Allen in early 20th century, जहां पर उन्होंने ये बोला that exact utility cannot be measured, but I know the ranking. That is the ordinal utility theory by Hicks and Allen in the early 20th century. Revealed preference by Samuelson. Basically, he said that a utility function is something which no consumer has in his head when they go out in the market, but they exactly know what they want to buy. So basis looking at what a consumer is buying, I will be able to comment on the preference of the consumer. तो सैम्यूलसन एक बहुत अलग अप्रोच जहां पर कोई यूटिलिटी फंक्शन ही नहीं है, एंड येट आई एम बीइंग एबल टू टॉक अबाउट द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. तो ये सैम्यूलसन ने इंट्रोड्यूस किया था इन मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी. ओके, पॉल सैम्यूलसन, एन अमेजिंग इकोनॉमिस्ट. इतना कंट्रीब्यूशन है सैम्यूलसन का इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स अनपैरेलल्ड.
लीनियर एक्सपेंडिचर सिस्टम लेट 20th सेंचुरी 1900s के एंड में आर स्टोन ने बेसिकली ये लीनियर एक्सपेंडिचर का सिस्टम हमें दिया इन कंज्यूमर बिहेवियर. इट्स अ मॉडल which basically gives us the demand as a linear function of income and prices. Okay, तो ये की थ्योरीज है जिसके ऊपर में ये देखिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी हैज बीन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. Revealed preference is by Samuelson. Indifference preference theory is by Hicks. Utility under uncertainty is von Neumann and Morgenstern. This is a key theory under choice under uncertainty in consumer behavior. यहाँ पर expected utility निकालते हैं by P multiplied, P is the probability multiplied by utility in this case, and 1 minus P in another case. Okay, so ये expected utility framework was first given to us by von Neumann Morgenstern, and it's extremely important when it comes to the choice under uncertainty theory. So 1 is 2, 2 is reveal preference, 2 is 4, 1 2 2 4, 3 1 and 4 3. Correct. C आंसर है. ये क्रोनोलॉजिकल देयरफॉर ऑर्डर हो गया. कार्डिनल, ऑर्डिनल, रिवील्ड प्रेफरेंस, लीनियर एक्सपेंडिचर सिस्टम. ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. यहां पर जनरल इक्विलिब्रियम भी आ गया है, शेफर्ड्स लेमा, होटलिंग्स लेमा, ये सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए. एजवर्थ बॉक्स is basically a diagram which can represent दो इंडिविजुअल का consumption point in a single diagram. So if I assume that an economy has only two people, एक अच्छा सा रेक्टेंगल बनता है जहां पर टोटल एक्स सप्लाई यहां पर आ जाएगा, टोटल वाई सप्लाई यहां पर आ जाएगा, origin of the first individual, origin of the second individual, and any point on or inside the Edgeworth box will give me how much x, how much the first person is buying, and the balance is how much the second person is buying. Okay, तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एजवर्थ ने, फ्रांसिस एजवर्थ ने इसको रिप्रेजेंट किया, which was taken, this tool was taken by Wilfred Pareto to develop his efficiency concept called Pareto efficiency. Okay, so Pareto took this tool and made a beautiful analysis and gave us the efficiency concept, which is the basis for general equilibrium. It's absolutely the basics. हाँ, so ये आपको जानना जरूरी है. Roy's identity links indirect utility function to the demand function. So xi is equal to minus ये v is the indirect utility function minus del v by del pi by del v by del m. Shepard's lemma derives Hicksian demand from the expenditure function. तो ऐसा कुछ निकलता है. Shepard's lemma के help से we are able to do this. Hoteling's lemma के help से we are able to derive the supply function from the profit function. Okay, yi is basically del pi del pi, that is from the Hoteling's lemma. तो ये सारे स्पेशल कॉन्सेप्ट्स है जो आपको डेफिनेटली मालूम होने चाहिए, बिकॉज नेट एग्जामिनेशन पूछता है यहां से. तो इफ आई टेक अ लुक एट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव कम फ्रॉम दिस एरिया, ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है जहां पर शेफर्ड्स लेमा हो रहा है. दिखाता हूं आपको. शेफर्ड्स लेमा यूज कर रहा है एनवेलप थ्योरम को. एडवर्स सिलेक्शन के बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे. शेफर्ड्स लेमा, एनवेलप थ्योरम. Adverse selection happens because of hidden type of agents. Hoteling lemma is related to the profit equation and Roy's identity to the indirect utility function.
सो A2, B1, C4 एंड D3। ठीक है, तो ये सवाल मैच द फॉलोइंग बहुत कॉमन है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, मैच द फॉलोइंग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट फेलियर मॉडल्स में एडवर्स सिलेक्शन इज हिडन इंफॉर्मेशन। बेसिकली द लेमन्स प्रॉब्लम बाय एकरलॉफ। लेमन का मतलब है कि आप बाहर बाजार में जा रहे हो, एक ही तरीके का दो शर्ट है, एक बैड क्वालिटी है, एक गुड क्वालिटी है, देखकर आपको समझ में नहीं आएगा कि बैड क्वालिटी कौन सा है, गुड क्वालिटी कौन सा है। द बैड क्वालिटी इज कॉल्ड लेमन्स बाय एकरलॉफ। एंड सिंस आपके पास में वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, यू माइट पे मोर फॉर अ बैड क्वालिटी टी शर्ट देन द मोर अमाउंट फॉर द गुड क्वालिटी टी शर्ट। सो वो adverse selection happens because of hidden information और asymmetric information। एक एजेंट के पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन है एंड दूसरे एजेंट के पास में विच इज यूजुअली द कंज्यूमर, उसको इतना नॉलेज वो प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, तो दे मे एंड अप पेइंग अ हाई अमाउंट फॉर एन इंफीरियर प्रोडक्ट। So that's adverse selection. X inefficiency by Harvey Liebenstein is inefficiency due to lack of competitive pressure. Agency theory by Jensen and Meckling, conflicts between the principals and agents. ये बेसिकली मार्केट फेलियर मॉडल्स है कुछ, जो आपको नाम आपको पता होना चाहिए। सो इसके बेसिस पर कैसा क्वेश्चन आता है उसका भी मैं आपको दे देता हूं। जून 2013 में मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। ये सारे क्वेश्चंस हैव बीन रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है फॉर ईच ऑफ यू टू नो। सो एजेंसी इज बाय जेंसन एंड मेकलिंग। X inefficiency is by Harvey Liebenstein. Utility maximization problem is by Williamson. Edgeworth box diagram first used by Wilfred Pareto. So answer हो गया B, 1 2 2 4 3 1 एंड 4 3। अगर आपको खाली लास्ट वाला भी आता था तो भी आप मार्क कर सकते थे राइट आंसर। ओके, अगर आपको नहीं भी आता था, यू कुड हैव अटेम्प्टेड इट एंड मेड द राइट आंसर। अब ये कुछ हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये कुछ बुक्स हैं जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। डब्ल्यू इकोनॉमिक क्विस्ने in 1758 the early circular flow model, Say's law supply creates its own demand in 1803, 200 साल से भी ज्यादा पहले। एब्सोल्यूट एडवांटेज बाय एडम स्मिथ 1776, सरप्लस वैल्यू बाय कार्ल मार्क्स 1867। ओके, तो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन। मार्क द फॉलोइंग हैविंग द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो डब्ल्यू इकोनॉमिक वाज द फर्स्ट बाय क्वेस्ने। ओके, फिर उसके बाद में सेज लॉ ऑफ मार्केट बाय जॉन बैप्टिस्ट से, फिर सरप्लस थ्योरी ऑफ सरप्लस, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज बाय एडम स्मिथ। ओके, ओ ये थ्री होगा, सॉरी ये थ्री होगा और ये टू होगा। ओके, सो वन सेज लॉ, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, फिर थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ओके, ओ सॉरी, तो गड़बड़ है। टेब्लू इकोनॉमिक, फिर उसके बाद में थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। तो 4312, हाँ सॉरी सी आंसर है, 4312। 1758, 1776 सेज लॉ ऑफ मार्केट, फिर थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो 4 के बाद में 3 होगा, 4312। ठीक है,
सो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आपको डेफिनेटली कंज्यूमर बिहेवियर में पता होना चाहिए. A few tips on this examination is elasticity पे बहुत ज्यादा फोकस है. स्लट्सकी डिकम्पोजिशन, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, उस पे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. एंगल गुड, गिफन गुड, इंफीरियर गुड. ओके. एंड ऑब्वियसली नोइंग द की इकोनॉमिस्ट्स एंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये सारे एरियाज आर इंपॉर्टेंट. ये इकोनॉमिस्ट का नाम और ये मॉडल्स, ये अगर आपको पता होगा, यू विल हैव एन अमेजिंग एग्जामिनेशन फॉर द यूजीसी नेट. सो ये था आज का मेरा क्लास ऑन कंज्यूमर बिहेवियर. इन द नेक्स्ट वन वील गो इनटू मार्केट्स. तो आई होप कि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है ये देखकर, एंड आई हैव ऑल्सो बीन एबल टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट एरियाज कि ये एरियाज तो डेफिनेटली आपको अच्छे से आना चाहिए. ठीक है. All the best to everyone, and I'll be seeing you in the next class on microeconomics, and I'll go into markets in that. Thank you. Thanks for watching. Bye bye.